Yes, next video on probability. Your exercise 16.2. In this case, the definitions of events. पिछली बार में हमने sample space definition थी. Now event. Point comes, what is an event? Any subset E of a sample space. Subset, you know, part of the sample space. Means any subset E of a sample space is called an event. In every questions of probability, first you are supposed to write the sample space and then you are supposed to go for events. So this is an important definition for events. Now I will give an examples, and first let me read few definitions. Impossible event. Empty set phi is called an impossible event. Sure event, sample space. The whole sample space is called sure events. Simple event, if the event E has only one sample point of a sample space, it is called simple event. Compound, if the event has more than one sample point, is called compound events. Algebra of events में पहला event complementary event है. This is first complementary. For every event corresponding, there corresponds another event A complement is called complementary event to A. It is also called not A. ये चीज़ आप 10th में भी पढ़ते रहे हैं. इवेंट ए और बी मीन्स ए यूनियन बी सेम है. ए एंड बी, ए इंटरसेक्शन बी आपको पता है. इवेंट ए बट नॉट बी, ए माइनस बी मतलब ए को बिलोंग करेंगे और बी को नहीं करेंगे. इसको आप ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट में स्टडीड विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम्स. जब क्वेश्चंस आएंगे हम डिस्कस करेंगे. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, 12th तक यूज होती हैं. All these definitions will be used in 12th class probabilities, and the students are lacking because they don't know the definition. Even then the reading of the statement is very difficult if you don't know the definitions. Two events are called mutually exclusive events if their intersection is empty. Means A intersection भी अगर जो empty set आ जाए, जिसको आप disjoint set भी कहते हैं. मतलब दो इवेंट्स है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इट मीन दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स. एग्जॉस्टिव इवेंट्स, इवेंट्स आर सेड टू बी एग्जॉस्टिव इफ यूनियन ऑफ ऑल द इवेंट्स इज इक्वल टू सैंपल स्पेस. सबका यूनियन ले लें, अगर वो सैंपल स्पेस के इक्वल आ जाए तो हम उनको एग्जॉस्टिव इवेंट्स कहते हैं. I will take the questions one by one and then again I will read out the definitions so that the points may be cleared. I am taking your exercise 16.2 and question number 1. A die is rolled. If a die is rolled, the first point is you should write the sample space in every questions. And in board marking you are getting half marks of writing the sample space. Let E is the event, die show 4. ये मैंने स्टेटमेंट लिखे हैं, इज इक्वल टू के बाद आप यहां पे 4 ऐसे करली ब्रैकेट में लिख देंगे. अब इसमें एक ही सैंपल पॉइंट है, इसलिए आप इसको सिंपल इवेंट भी कह सकते हैं. तो यहां से डेफिनेशन क्लियर होगी. दिस इवेंट इज कॉल्ड सिंपल इवेंट. दिस इज द डेफिनेशंस. सबसे इवेंट की डेफिनेशन क्लियर होगी कि दिस इज ए सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस. मैंने कहा था कि मैं ऐसे डेफिनेशंस क्लियर कर दूंगा. एफ इज द इवेंट, डाई शो इवन नंबर. अब डाई शो इवन नंबर्स मीन एलिमेंट 2, 4, 6
लेने सैंपल पॉइंट से ही है। नाउ यहां जो सैंपल पॉइंट ऑफ मोर देन वन है, इट मीन दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कंपाउंड इवेंट्स। आर ई एंड एफ आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, आपसे पूछा गया, आप कहेंगे सिंस ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू एम्प्टी, दिस इंप्लाइज इवेंट्स आर म्यूचुअली, यस events are mutually exclusive, mutually exclusive. I hope the question is clear. Sorry, 4 is common. E intersection F is not empty set. No, events are not mutually exclusive, क्योंकि E intersection F इसमें 4 कॉमन आ जाएगा। क्लियर? तो आप यहां लिखेंगे E इंटरसेक्शन F इज इक्वल टू 4, मैंने ध्यान नहीं दिया, इज नॉट इक्वल टू एम्प्टी सेट, देयरफॉर इवेंट्स आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। चलिए, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चंस। डेफिनेशंस मैं अभी रब नहीं कर रहा हूं, बिकॉज जैसे जैसे एग्जाम्पल्स आएंगे वही डेफिनेशन से रिलेटेड आपके एग्जाम्पल्स बनाने शुरू कर दूंगा। इससे लेक्चर्स में सम भी हो जाएंगे और आपका पॉइंट भी क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, ए डाई इज थ्रोन, डिस्क्राइब द इवेंट्स। ओके, ए डाई इज थ्रोन मीन्स सैंपल स्पेस, डिस्क्राइब द इवेंट्स, ए नंबर लेस देन 7। अब लेस देन 7 में कितने आ जाएंगे? सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। इट मीन दिस इज योर श्योर इवेंट्स। कहां लिखा है श्योर इवेंट? द होल सैंपल स्पेस इज कॉल्ड श्योर इवेंट। यहां से श्योर इवेंट का मतलब भी क्लियर हो गया, डेफिनेशंस भी क्लियर होगी। इज इट क्लियर? बी, नंबर ग्रेटर देन 7, एम्प्टी सेट। तो ये इम्पॉसिबल इवेंट की डेफिनेशन भी क्लियर होगी। अब ग्रेटर देन 7 तो इसमें कुछ होता ही नहीं है, इट मीन आपके पास क्या रहेगा? इम्पॉसिबल इवेंट। नेक्स्ट, सी, मल्टीपल ऑफ 3 means 3 and 6. Is it clear? 4. नेक्स्ट, डी दे रखा है नंबर। एग्जाम में भी ऐसे ही लिखना है आपने, पहले डी को डिफाइन करना जरूरी है। नंबर लेस देन 4, सब कुछ करली ब्रैकेट के अंदर लिखना, 1, 2 and 3। सैंपल स्पेस लिखा होगा वहीं से काम करना है। even number greater than 4, even number greater than 4, only 6 आएगा। this is again a simple points। F, number not less than 3, number not लेस देन 3, नंबर 3 से कम नहीं होना चाहिए, 4, 5 and 6। थ्री से कम का मतलब आप 3 ले सकते हैं, तो 3, 4, 5, 6 कर लीजिए। ठीक है, तो ये मैंने सारी चीजें आपको डिफाइन कर दी। अब आगे सम अब शुरू होता है। दिस इज द पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट्स। अब ऑलमोस्ट मैंने सारी डेफिनेशंस क्लियर कर ही दी हैं आपको। इम्पॉसिबल, ये सिंपल, कंपाउंड, इसलिए मैं ये रब कर रहा हूं।
थोड़ा सा यूनियन इंटरसेक्शंस अभी रह गया है, उसको डिस्कस कर लेंगे, अभी वो डेफिनेशंस नहीं रब करते। पहला पार्ट आपका ए यूनियन बी। व्हाट इज ए यूनियन बी? अब ए के एलिमेंट्स भी हैं, बी के भी हैं, तो ए यूनियन बी कितना आ जाएगा? 1 to 6 ही आ जाएगा। मीन जो सैंपल स्पेस एस के इक्वल आ जाएगा। अब अगर ए यूनियन बी सैंपल स्पेस एस के इक्वल आ गया तो हम इसको एग्जॉस्टिव इवेंट कह सकते हैं। ऑल इवेंट्स आर सेड टू बी एग्जॉस्टिव इफ यूनियन ऑफ ऑल इवेंट इक्वल टू सैंपल स्पेस। अब ए यूनियन इंटरसेक्शन बी एम्प्टी सेट आ जाएगा, इसको मैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कह सकता हूं। अगला आपसे पूछा गया बी यूनियन सी। अब देखिए बी और सी में बी यूनियन सी 3 और 6 आ जाएगा, क्योंकि एम्प्टी सेट से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है ई इंटरसेक्शन एफ। ई इंटरसेक्शन एफ मीन कॉमन पोर्शंस। ई और एफ में देख लीजिए कॉमन में 6 है, आंसर इसका सिंपल इवेंट आ जाएगा। अगला है डी इंटरसेक्शन ई। डी इंटरसेक्शन ई। डी और ई में देख लें, मेरे हिसाब से तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो एम्प्टी सेट कह दो। नेक्स्ट आपके पास है ए माइनस सी। एलिमेंट ए को बिलोंग करेंगे और सी को नहीं करेंगे, तो 1 2 4 5 एलिमेंट बिलोंग्स टू ए बट डज नॉट बिलोंग्स टू सी, ये ध्यान में रख लेना। नेक्स्ट है डी माइनस ई। ये यहाँ डेफिनेशंस क्लियर हो गई हैं। इवेंट ए बट नॉट बी मीन्स बिलोंग्स टू ए बट डज नॉट बिलोंग्स टू बी। अगला है बी माइनस डी। सॉरी, बी माइनस डी नहीं है, डी माइनस ई है। डी माइनस ई। डी और ई वन टू थ्री। ई इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट। ई इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट। इसको आप ई माइनस एफ ही पढ़ सकते हैं, एक ही बात होती है। ई इंटरसेक्शन वेन डायग्राम से क्लियर हो जाता है। ये देखिए, ये आपके पास ई है, ये एफ है, एफ कॉम्प्लीमेंट ये होगा, तो ये आपने लेना है। ये ई और ये एफ है, तो ये ई माइनस एफ ही होता है। ई माइनस एफ से सोचना आसान होता है। एलिमेंट बिलोंग्स टू ई बट डज नॉट बिलोंग्स टू एफ, तो एम्प्टी सेट आ जाएगा। क्योंकि अगर जो 6 लेता हूं तो 6 उधर लाई कर रहा है, इसलिए एम्प्टी सेट आ जाएगा। नेक्स्ट एफ कॉम्प्लीमेंट। अब एफ कॉम्प्लीमेंट का मतलब एफ में जो एलिमेंट्स हैं नॉट एफ लेना है, तो नॉट एफ में कौन कौन से नहीं है, 1 और 2, तो एफ कॉम्प्लीमेंट 1 और 2 आएगा। ये कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन आ गई, नॉट ए। इट मीन इस डेफिनेशन से क्वेश्चन नंबर 2 से आपको सारी डेफिनेशंस एक साथ क्लियर हो जाती हैं। और इस एक्सरसाइज में ओनली दिस डेफिनेशंस आर इम्पॉर्टेंट्स। और इसमें अभी तक कुछ भी नहीं है। पहली में एक्सरसाइज में सैंपल स्पेस था, मीन्स सिर्फ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं, और यहाँ पे आपके इवेंट्स की डेफिनेशंस हैं। And if you know all these definitions, then the questions can be completed very easily. Third questions, an experiment involves rolling a pair of dice, recorded the number that comes up.
टोटल आउटकम्स आपको पता ही है, सैंपल स्पेस में 36 6^2 होंगे। आप लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 मैं ले रहा हूं। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इज 6^2 इज 36। सैंपल स्पेस लिखना है तो x, y सच दैट x, y इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड 6 मीन 36 हो जाएंगे। दिस इज वेरी इजी टू राइट आउट। ए कोई इवेंट है, सम इज ग्रेटर देन 8। अब जब सम ग्रेटर देन 8 लेंगे तो डाई थ्रो करने पे सम आपको पता है कि 2 से 12 आता है, तो ग्रेटर देन 8 में 9 का केस भी आएगा। 9 में आप 3 6 4 5 6 3 एंड 5 4, फिर आप 10 में जा सकते हैं। ऐसे ही आप 11 में जा सकते हैं, ऐसे ही आप 12 में जा सकते हैं। करली ब्रैकेट में बंद कर दीजिए, ये आपका इवेंट ए आ जाएगा। बी में दे रखा है 2 अक्कर ऑन आइदर डाई। टू अक्कर ऑन आइदर डाई, किसी भी डाई के ऊपर 2 अक्कर कर सकते हैं। मीन्स यहां पे 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 1 2 3 2 4 2 5 2 6 2। सी दिया हुआ है द सम is at least 7 and a multiple of 3। कम से कम 7 और मल्टीपल ऑफ 3 सम की बात हो रही है। मल्टीपल ऑफ 3 में 9 आ जाएगा, एंड 12 आ जाएगा। ये तो मैंने इवेंट को किया। आगे पूछा है विच ऑफ द पेयर आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। Which of the pairs are mutually exclusive? आप यहां से लिखेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव पेयर्स आर मीन्स A इंटरसेक्शन B एम्प्टी है, दैट इज A और B एक पेयर आ जाएगा। नंबर 2 B इंटरसेक्शन C एम्प्टी है, तो B और C दूसरा पेयर आ जाएगा। तो ये दो पेयर्स हैं जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। A और C नहीं आएगा, रीजंस आपको पता है, बिकॉज इनकी इंटरसेक्शंस एम्प्टी नहीं है। एनी डाउट?
तो ए बी एंड बी सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, यही दो पेयर्स रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, 3 coins are tossed once. A denotes the event 3 heads show, B denotes the event 2 head and 1 tail, C denotes the event 3 tails, and D denotes the event a head show on the first coins. आसान क्वेश्चंस हैं, कोई मुश्किल नहीं है। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इज 2 raised to power 3, दिस इज 8 हो जाएंगे। सैंपल स्पेस आपको लिखना ही चाहिए, ये बात हम पहले ही कह चुके हैं। ए बी सी डी आपको क्लियरली लिखने पड़ेंगे। ए लिखा है 3 हेड शो अप, 3 हेड, तो सैंपल स्पेस में ये आ जाएगा इवेंट्स। बी में 2 हेड एंड 1 टेल, 2 हेड 1 टेल, 3 केस, तीनों केस आएंगे सैंपल स्पेस से। सी में 3 टेल्स, डी में ए हेड शो ऑन फर्स्ट कॉइन, हेड ऑन फर्स्ट कॉइन, हेड 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 आ जाएगा, हेड टेल आ जाएगा, हेड हेड टेल आ जाएगा, हेड टेल टेल आ जाएगा। आगे जो पूछा गया आपके आंसर्स हैं। विच इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ए बी सी डी को इवेंट्स कहते हैं। म्यूचुअली फर्स्ट पार्ट में ले रहा हूं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कौन कौन से रहेंगे? 1 इज ए इंटरसेक्शन सी एम्प्टी है, बी इंटरसेक्शन सी एम्प्टी है, ए इंटरसेक्शन बी एम्प्टी है। तो ये 3 पेयर्स आएंगे। इवन डी इंटरसेक्शन सी भी एम्प्टी है। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव पेयर्स आर ए सी, देन बी सी, ए बी एंड सी डी आर 4 पेयर्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। सेकंड पार्ट आपसे पूछा गया सिंपल इवेंट्स। सिंपल इवेंट्स एक ही है, दैट इज योर सी। ए भी कह लो, ए में भी एक ही एलिमेंट्स हैं। नेक्स्ट थर्ड केस में पूछा गया कंपाउंड इवेंट्स। मोर देन 1, बी और डी कह लो। मीन जब आप इसकी स्टेटमेंट्स लिख लेंगे तो नीचे कोई भी पार्ट्स आएंगे, दैट विल नॉट बी ए प्रॉब्लम्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। सेम सैंपल स्पेस से ही हम चला लेंगे, कोई नया करने की जरूरत नहीं है। और वंस यू नो द डेफिनेशंस, रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। 3 कॉइन्स आर टॉस, तो यही सेम है। डिस्क्राइब पार्ट 1 2 इवेंट्स विच आर
म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो यहाँ से आपको एग्जाम्पल मिल जाएगा, एनी वन एग्जाम्पल यू कैन टेक। यहाँ पे मेरे पास 4 पेयर्स हैं, इसमें से कोई भी एक पिकअप कर लेना। 3 इवेंट्स विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब आपस के इंटरसेक्शन तो एम्प्टी होनी चाहिए, और अगर जो कंबाइंड करें तो वो एग्जॉस्टिव बन जाए। बी, सी और डी ले लेते हैं। बी, सी और डी। मैंने क्या कहा, 3 इवेंट्स विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। 3, मैं क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस कर रहा हूं। 3 इवेंट्स which are mutually exclusive and exhaustive। मैंने B, C और D ले लिए। देखिए B यूनियन C यूनियन D S के इक्वल आ जाएगा, एंड B इंटरसेक्शन C is empty, C intersection D is empty, and B intersection D is not empty। It means यहाँ से काम नहीं चलेगा, आपको अपना एग्जाम्पल्स कोड करना पड़ेगा। देखिए मैं यहां से एक तो ये ले लेता हूं, ए इज द इवेंट एट लीस्ट 1 हेड। अब एट लीस्ट 1 हेड का मतलब हेड टेल टेल। एट लीस्ट 2 हेड करो, 2 हेड 1 टेल, एंड तीनों हेड। 4 केस तो ये आ गए। बी इवेंट्स एट लीस्ट 2 टेल्स, टू टेल्स 1 हेड, बस इवेंट 2 टेल्स कर रहा हूं मैं, एट लीस्ट वर्ड हटा रहा हूं। C is the event all tails। Now A union B union C is equal to sample space, and A intersection B is empty, B intersection C is empty, and A intersection C is empty। ये केस आपके लिए बेस्ट रहेगा। मैंने पहले वहां से बनाने की कोशिश करी, वहां पे वो केस की पॉसिबिलिटीज नहीं थी। 5th केस का 3rd पार्ट है, 2 इवेंट्स विच आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। वो यहां से मिल जाएगा, इवेंट्स विच आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बी एंड डी। इज इट क्लियर? इवेंट्स विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बट नॉट एग्जॉस्टिव, वो भी यहां से मिल जाएगा। मीन्स बी सी एंड डी तीनों ले लेंगे। इज इट क्लियर? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। इवेंट्स विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बट नॉट एग्जॉस्टिव, वो तो बहुत सारे केस आप बना सकते हैं।
मतलब यूनियन सैंपल स्पेस एस के इक्वल नहीं आनी चाहिए। इवेंट्स विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बट नॉट एग्जॉस्टिव, तो ये केसेस आप खुद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, 2 डाइस आर थ्रोन, ए बी सी आर एज फॉलो, गेटिंग द नंबर्स। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, बड़े आसानी से हो जाएगा। नॉट ए नॉट बी, मीन इस एक्सरसाइज में सिर्फ आपको डेफिनेशन ही लर्न करनी है। फिर भी मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं। 2 डाइस आर थ्रोन, सैंपल स्पेस, आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 6, सिर्फ इवेंट्स को एक्सप्लेन कर देता हूं। एक्स वाई सच दैट एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 and 6, ए colon getting even number on first die। 18 केस बनेंगे, मीन्स 2 1 4 1 4 2 4 5 6 1 getting odd number on first die। अठारह ही केस यहां पे बनेंगे। 1 1 1 3 1 4 3 1 3 2 3 3 3 5 5 1 5 2 5 4 5 5 5 6। Sum of the number on die is less than equal to 5। Sum of numbers is less than equal to 5। पहला नंबर 2 1 1, फिर 3 1 2 2 1, फिर 4 1 3 3 1 and 2 2, फिर 5 1 4 4 1 2 3 3 2। ए कॉम्प्लीमेंट्स, ए कॉम्प्लीमेंट बी के इक्वल आ जाएगा। इसमें ये 18 केस है, यही वाले 18 तो नहीं है, इवन और ओड वाले। उसने पूछा ए कॉम्प्लीमेंट मीन्स नॉट ए, तो आप कहेंगे नॉट ए मीन्स बी। ये पहले का आंसर हो सकता है। क्लियर कि नॉट ए मीन्स सैंपल स्पेस में से ए माइनस होगा। अगला केस है नॉट बी। नॉट बी मीन्स बी कॉम्प्लीमेंट पूछा गया, वो ए हो जाएगा। अगले केस में पूछा गया ए और बी, वो एस हो जाएगा। यूनियन लेंगे तो सैंपल स्पेस ही आएगा। फोर्थ में पूछा गया ए इंटरसेक्शन बी, वो एम्प्टी सेट हो जाएगा। आपस में कुछ भी कॉमन नहीं आना चाहिए। अगले में फिफ्थ में पूछा गया ए माइनस सी, ए को बिलोंग कर रहा है बट सी में नहीं होना चाहिए। अब सी में कौन से एलिमेंट्स नहीं है? इवन नंबर देख लो स्टार्टिंग में कौन सा, एक 2 2 और एक 2 3।
3 नंबर माइनस कर दो, 2 2 4 1 एंड 2 3। कौन कौन से कहा है मैंने, मतलब सारे केसेस लिखने हैं। एक 2 1 को माइनस कर दो, एक 2 2 को, और एक 4 1 को। तो आप यहाँ 2 3 लिख सकते हैं, 2 3 भी नहीं लिखेंगे, ठीक है। 2 4 लिख सकते हैं, 2 5 लिख सकते हैं, और 2 6। 4 1 नहीं लिखेंगे, 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 एंड 6 6। ये सारे केसेस आप लिख सकते हैं। बी और सी दोनों की यूनियन कर लीजिए। ये 1 1 ये और नंबर वाले तो इसमें सारे ही कवर्ड है। 1 3 3 1 भी कवर्ड है, 1 4 भी इसमें आएगा, 3 2 भी इसमें आएगा। इवन वाले नहीं आएंगे, वो डाल देना। तो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट ए ही होता है, तो ए इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट लेना है, तो ये सारे सम्स आप खुद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 you will try of your own with all these examples. So this is all about your exercise 16.2. एक या दो सम्स मैंने छोड़े हैं, वो आप डेफिनेशंस लर्न करेंगे, सेट थ्रू से काम करेंगे, तो ये रिजल्ट्स आपको क्लियर समझ में आ जाए।